Hello students, good morning. I again present in this chapter, that is atomic structure. As you know, atomic structure chapter have been completed at last term. Today we will solve some numericals, that is some miscellaneous problems. But the main topics on which we will solve the numericals are the numericals based on Bohr's model of atom, like radius, energy, frequency and time period of electron in nth orbit. Some numericals based on Einstein equation and some numericals based on de Broglie wavelength. So students, in the series of numericals, I am going to solve numerical number 1. The numerical number 1 is a proton having mass 1.66 into 10 to the power minus 27 kilogram is moving with kinetic energy 5 into 10 to the power minus 7 joule, 5 into 10 to the power minus 27 joule. What is the wavelength of प्रोटॉन? प्रोटॉन की हमें बच्चों वेवलेंथ फाइंड करना है. न्यूमेरिकल्स में सबसे पहले हमें करना क्या होता है? फर्स्टली वी शुड राइट ऑल द इंफॉर्मेशन विच आर गिवन इन द क्वेश्चंस. देन द इंफॉर्मेशन विच वी वांट टू नो, that information will be question mark. In this the question asks wavelength of proton, therefore wavelength, that is lambda, is question mark. Mass of proton given 1.66 into 10 to the power minus 27 kilogram and kinetic energy given 5 into 10 to the power minus 27 joule. Clear students? Then we should search the formula in which lambda, mass of proton and kinetic energy is present. So students, the relation between lambda energy and Planck constant is lambda is equals to h upon under root 2m into k. M is the mass of proton, k is the kinetic energy of proton and h is the Planck constant, which is constant. So after putting all the values, that is h is equals to 6.6 into 10 to the power minus 34 upon under root 2 into mass of proton 1.66 into 10 to the power minus 27 into k, kinetic energy given in the question, and the value is 5 into 10 to the power minus 27 joule. So 5 into 10 to the power minus 27. After solving this question, answer will come 1.62 into 10 to the power minus 7 meter. The unit of lambda is meter or centimeter, but all the information in this questions are used in SI system. Therefore lambda will come in meter. 1.62 into 10 to the power minus 7 meter. Clear students? Now question number 2 problem. Calculate the de Broglie wavelength of an electron traveling with at 1% of the speed of light. तो इसमें आपको क्या फाइंड करना है? कैलकुलेट द de Broglie, you should find de Broglie wavelength of electron and its velocity given. The velocity of electron is 1% of the speed of light. So students, firstly we should write all the information given in the question, and in the question only one information given, which is the speed of electron, and speed of electron is 1% of speed of light. So that we should write the speed of light and its 1%. Its 1% means it should be multiplied by 1 by 100. So velocity of light should be multiplied by 1 by 100. So velocity of electron in this question 3 into 10 to the power 6 meter per second. And mass of electron, it is a constant value, we should learn previously. So mass of electron is 9.1 into 10 to the power minus 31 kilogram. So students, we should think the relation in between the information given and the information which we want to know, that is lambda, v and m. In this one relation is lambda is equals to h upon m into v. M is the mass of particle and v is the speed of particle. Here mass of electron and velocity of electron we should write here. So after putting all the values of information given in the formula, that is h, the value of h 6.6 into 10 to the power minus 34. M is the mass of electron 9.1 into 10 to the power minus 31 kilogram, and v velocity 1% of speed of light, that is 3 into 10 to the power 6. Okay students, after solving these data given, the answer is 2.427 into 10 to the power minus 10 meter. Clear? लेमडा की यूनिट क्या होगी? मीटर में होगी, ठीक, क्योंकि यहाँ पे सभी सिस्टम हमने क्या यूज किया? SI में यूज किया. नो प्रॉब्लम नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3. Two particles A and B are in the motion. Two particles A and B are in the motion. If the wavelength of associated particle A is 5 into 10 to the power minus 8 meter. Okay students? If the wavelength of particle A is 5 into 10 to the power minus 8 meter. Calculate the wavelength of associated with particle B and its momentum is half of A. B का मोमेंटम A की क्या है? हाफ है. फर्स्टली वी शुड राइट ऑल द इन्फॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन.
wavelength of A is 5 into 10 power minus 8 meter, and wavelength of B we want to know, or we can say we have to be solved in this question. Momentum of A, let A का momentum ने क्या ले लिया A, then momentum of B will be A by 2, because in the question says the momentum of B is half of the A, so momentum of A is A, then the momentum of B will be half of the A, that is A by 2. Now relation between lambda and momentum, you should think the relation in between lambda and momentum. The relation between lambda and momentum is lambda is equals to h upon p. Lambda is equals to h upon p. In this formula, h is constant, so lambda only depend upon the momentum, and lambda and momentum both are inversely proportional, so that the relation will be lambda a upon lambda b is equals to momentum of b upon momentum of a. Lambda a upon lambda b is equals to momentum of b upon momentum of a. Okay student, now lambda of b will be wavelength of a into momentum of a upon momentum of b. lambda a उसकी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 5 इंटू 10 पावर माइनस 8 मीटर, उसकी वैल्यू पुट कर दिया. मोमेंटम ऑफ ए हम यहाँ पे ए कंसीडर हुआ है, एंड मोमेंटम ऑफ बी क्या है ए बाई 2 है, ए का क्या है हाफ है. ठीक है, इसको सॉल्व करने पर जो आंसर कितना आ जाएगा, वेवलेंथ ऑफ बी कितनी आ जाएगी 10 पावर माइनस 7 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी. ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ प्रॉब्लम नंबर नेक्स्ट. कैलकुलेट डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन दैट हैज बीन एक्सेलरेटेड बाई 100 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस. आपको एक इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ फाइंड करना है. ठीक है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ फाइंड करना है जो एक्सेलरेट किस पोटेंशियल डिफरेंस से हो रहा है 100 वोल्ट से हो रहा है. अब आपको एक फार्मूला आपको सोचना है जिसमें वेवलेंथ भी हो और पोटेंशियल डिफरेंस भी हो. चलो फर्स्टली वी शुड राइट ऑल द इंफॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन. इन द क्वेश्चन पोटेंशियल गिवन 100 वोल्ट, पोटेंशियल 100 वोल्ट. यहाँ पे बच्चों जो पोटेंशियल होगा उसको हम कैपिटल वी से डिनोट करते हैं, कैपिटल वी से. तो यहाँ पोटेंशियल क्या हो गया 100 वोल्ट हो गया. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी नो 9.1 इंटू 10 पावर माइनस 31 किलोग्राम, एंड चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलाम. सो स्टूडेंट, हमने आपको बहुत सारे रिलेशन आपको हमने चैप्टर पढ़ाते समय बताया हुआ है. उस रिलेशन में एक रिलेशन ये भी है, लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन अंडर रूट 2m(k). और के है क्या, काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी का एक फार्मूला मैंने आपको बताया था जर्मर्स मॉडिफिकेशन में. काइनेटिक एनर्जी चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस Q इंटू ई, या Q इंटू वी कह सकते हैं. ठीक है, तो H हमें पता है 6.6 इंटू 10 पावर माइनस 34 जूल अपॉन रूट 2m. ई भी बोल सकते हो, Q भी बोल सकते हो. वहाँ पे ई भी मैंने बताया था, ई मीन्स चार्ज ऑफ द पार्टिकल. 2m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने पुट कर दिया. चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पुट कर दिया. एंड पोटेंशियल डिफरेंस क्या है 100 वोल्ट है. इसको जब हम लोग सब कुछ कैलकुलेट कर लेंगे, कैलकुलेट करने के बाद अपना आंसर आ जाएगा 1.2278 इंटू 10 पावर माइनस 10 मीटर. ठीक, मीटर क्यों, क्योंकि वेवलेंथ है, और वेवलेंथ की यूनिट क्या होती है, या तो सेंटीमीटर होती है या तो क्या होती है मीटर होती है. ठीक है स्टूडेंट्स, या तो सेंटीमीटर या तो मीटर. अब यहाँ पे ये सभी एसआई सिस्टम में है, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा मीटर में आ जाएगा. ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है प्रॉब्लम. द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू ओवरकम द अट्रैक्टिव फोर्सेज बिटवीन एन इलेक्ट्रॉन एंड द सरफेस ऑफ सिल्वर मेटल इज 5 into 5.52 into 10 to the power minus 19. 5.52 into 10 to the power minus 19 joule. What will be the maximum kinetic energy of electrons ejected out from silver surface which is being exposed to ultraviolet light of lambda 360 angstrom. ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन बहुत ईजी है. अब यहाँ पे क्वेश्चन एक बार हम फिर से ध्यान से पढ़ते हैं आपको समझाने के लिए. द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू ओवरकम द अट्रैक्टिव फोर्सेज बिटवीन एन इलेक्ट्रॉन एंड द सरफेस ऑफ सिल्वर मेटल. कहने का मतलब यहाँ पे एक ऐसी मिनिमम एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन और मेटल सरफेस पे जो अट्रैक्टिव फोर्स है उसको ओवरकम करने के लिए, उसको फिनिश करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए लगती है. और वो जो एनर्जी होती है उसको हम लोग बोलते हैं वर्क फंक्शन ऑफ मेटल. क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन ऑफ मेटल. तो इसका मतलब यहाँ पे जो दिया गया है ये 5.52 इंटू 10 पावर माइनस 19, दिस इज द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल गिवन.
and question asked from you, what will be the maximum kinetic energy of electrons? That is, you have to be find kinetic energy of electron. Metal, the work function of metal is given, and the lambda 360 angstrom given, which is the wavelength of incident light on the metal surface of silver, that is UV light. ये इंसिडेंट लाइट हो गई, उसकी वेवलेंथ हो गई. नाउ एनर्जी ऑफ फोटोन एब्जॉर्ब्ड, एनर्जी ऑफ फोटोन एब्जॉर्ब्ड इज इक्वल्स टू एच सी बाई लेमडा. एच सी बाई लेमडा की वैल्यू हमने पुट कर दिया, इतनी एनर्जी उसने एब्जॉर्ब किया हुआ है, ये इतनी एनर्जी दी गई है. ठीक है, तो इसको सॉल्व करते समय लास्ट में हमारा यहाँ पे स्टेप हमने सॉल्व किया. सॉल्व करने के बाद यहाँ से भी हम लोग सॉल्व करते गए. ये आंसर आ गया हमारा 5.5 इंटू 10⁻18 जूल है. तो ये 5.5 इंटू 10⁻18 जूल, दिस इज द एनर्जी एब्जॉर्ब बाई द फोटोन, दैट इज द इंसिडेंट एनर्जी ऑन द मेटल सरफेस, सिल्वर सरफेस. नाउ energy of incident or energy of photon is equals to work function of the metal plus kinetic energy of ejected electron. Energy of photon given here 5.5 into 10⁻18 joule, and work function of metal in the question given, which value is 5.52 into 10⁻19. यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया. यहाँ से काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, दिस माइनस दिस हो जाएगा. तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी बच्चों, 5.5 इंटू 10⁻18 माइनस 5.5 इंटू 10⁻19. सबसे पहले तो यहाँ पे बच्चों 5.5 दोनों साइड उसको हमने कॉमन ले लिया. यहाँ पे 10⁻18 हो गया, यहाँ पे 10⁻19 को हम लिख सकते हैं 0.1 इंटू 10⁻18, 0.1 इंटू 10⁻18. अब हम नेक्स्ट स्टेप में 10⁻18 भी दोनों साइड, वो भी कॉमन आ गया, बाहर आ गया. तो बाहर क्या बचा, 5.5 इंटू 10⁻18 इन ब्रेकेट. यहाँ पे लेफ्ट होगा 1 और यहाँ पे 0.1. तो 1 माइनस 0.1 कितना होता है, 0.9 होता है. 0.9 हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया. 0.9 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया 4.95 इंटू 10⁻18. यही है काइनेटिक एनर्जी ऑफ इंजेक्टर इलेक्ट्रॉन. किसमें होगी, जूल में होगी. ठीक है स्टूडेंट्स, 4.95 इंटू 10⁻18 जूल हो गए. अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है. कंपेयर द एनर्जीज ऑफ टू रेडिएशंस, वन विथ लेमडा 6000 एंगस्ट्रॉम एंड अदर विथ लेमडा 3000 एंगस्ट्रॉम. तो आपको दोनों एनर्जी को आपको कंपेयर करना है. एक एनर्जी के लिए वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम और दूसरे के लिए क्या 3000 एंगस्ट्रॉम है. तो इसके लिए सबसे सिंपलेस्ट बच्चों फार्मूला होता है E इक्वल्स टू एच सी बाई लेमडा. E इक्वल्स टू एच सी बाई लेमडा. तो E1 इक्वल्स टू क्या होगा, एच सी बाई लेमडा 1. E2 क्या होगा, एच सी बाई लेमडा 2 हो गया. एच सी कैंसिल हो गए, लेमडा 2 बाई लेमडा 1 हो जाएगा. तो लेमडा 2 क्या है, 3000 एंगस्ट्रॉम, और लेमडा 1 क्या है, 6000 एंगस्ट्रॉम है. इसको सॉल्व करने के बाद आंसर क्या आ जाएगा, 1/2. कितना आ जाएगा, 1/2. तो E1 और E2 का रेशियो क्या हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा. ठीक है, जिसका लेमडा ज़्यादा होता है उसकी एनर्जी क्या होती है, कम होती है. अब E1 का लेमडा क्या है, 6000 एंगस्ट्रॉम है, तो उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. जिसका लेमडा 3000 एंगस्ट्रॉम है, इसका लेमडा हाफ है, तो एनर्जी क्या हो जाएगी, जस्ट डबल हो जाएगी. हम लोग ऐसे ओरली भी सॉल्व कर सकते हैं कि एनर्जी और लेमडा में इन्वर्सली रिलेशन है. अगर लेमडा 2 टाइम हो रहा है तो एनर्जी क्या हो रही है, हाफ हो रही है. ठीक है, या अगर लेमडा हाफ हो रहा है तो एनर्जी क्या हो जाएगी, 2 टाइम हो जाएगी. तो ऐसे भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे बिना कैलकुलेशन के. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर ऑफ रेडिएशन विथ वेवलेंथ 480 नैनोमीटर. वेवलेंथ क्या है, 480 नैनोमीटर है. सबसे पहले जितनी भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है उनको हम लोग यहाँ पे नोट कर लेते हैं. इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में क्या गिवन है, लेमडा गिवन है 480 नैनोमीटर. 480 नैनोमीटर को जब 1 नैनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 10⁻9 से मल्टीप्लाई करते हैं. तो इस होल वैल्यू को 10⁻9 से जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर हो जाएगा 3 इंटू 10⁸. कितना हो जाएगा, 3 इंटू 10⁸. बच्चों ये स्पीड ऑफ लाइट यहाँ पे दी गई है, स्पीड ऑफ लाइट दी गई है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड. इसको हम यहाँ पे नोट कर लेंगे. ये है स्पीड ऑफ लाइट गिवन है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और ये लेमडा मीटर में आ गया. अब एक हमारा फार्मूला होता है C इक्वल्स टू न्यू इंटू लेमडा. C इक्वल्स टू न्यू इंटू लेमडा. यहाँ से न्यू क्या हो जाएगा, न्यू इक्वल्स टू हो जाएगा C बाई लेमडा. न्यू इक्वल्स टू C बाई लेमडा. C की वैल्यू 3 इंटू 10⁸, लेमडा 480 इंटू 10⁻9. इसको सॉल्व करने पे आंसर आ जाएगा 6.25 इंटू 10⁻14 सेकेंड इनवर्स या हर्ट्ज. ठीक है. सेकेंड पार्ट, वेव नंबर. द फार्मूला ऑफ वेव नंबर इज 1/λ सिंस वेव नंबर इज द रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ. तो वेव नंबर विल बी 1/λ एंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा इज 480 इंटू 10⁻9 मीटर.
तो 1 बाई लेमडा इज इक्वल्स टू दिस 2.08 इंटू 10⁶। यूनिट क्या होगी इसकी? मीटर इनवर्स होगी, क्योंकि लेमडा ही क्या होती है? मीटर। तो लेमडा यूनिट अगर मीटर होती है तो वेव नंबर की क्या हो जाएगी? मीटर इनवर्स हो जाएगी। ठीक है, ऐसे हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। प्रॉब्लम नंबर नेक्स्ट है, कैलकुलेट वेवलेंथ, वेव नंबर एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ए फोटोन हैविंग एन एनर्जी इक्वल्स टू 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसकी सिर्फ फोटोन की एनर्जी दी गई है, कितनी दी गई है? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया गया है। तो ये बाकी सारी चीज़ें आपको फाइंड करनी है। क्या क्या फाइंड करनी है? वेवलेंथ फाइंड करना है, वेव नंबर फाइंड करना है, फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है, इतनी सारी चीज़ें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले जो भी फाइंड करना है हमने नोट कर लिया, लेमडा क्वेश्चन मार्क, वेव नंबर क्वेश्चन मार्क, न्यू क्वेश्चन मार्क, न्यू दैट इज फ्रीक्वेंसी, एंड इन क्वेश्चन द एनर्जी गिवन दैट इज 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जब हम बच्चे जूल में कन्वर्ट करते हैं तो हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? 1.6 इंटू 10⁻19 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो आफ्टर मल्टीप्लाइंग 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाई 1.6 इंटू 10⁻19 दिस वैल्यू बिकम्स 4.8 इंटू 10⁻19 जूल, 4.8 इंटू 10⁻19 जूल। नाउ रिलेशन नंबर 1 E is equals to H into C by lambda. Then lambda will be HC upon E. H की वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻34, C 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, एंड E आपने जो फाइंड किया है 4.8 इंटू 10⁻19। इसको वैल्यू को सब लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पे लास्ट में फाइनल आंसर आ जाएगा 4.125 इंटू 10⁻7 आ जाएगा मीटर। लेमडा है तो लेमडा यूनिट क्या लिखेंगे हम लोग? मीटर लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद बच्चों न्यू बार आ गया। न्यू बार क्या होता है? 1 बाई लेमडा होता है। और लेमडा क्या दिया गया है यहाँ पे? 4.125 इंटू 10⁻7। तो ये 4.125 इंटू 10⁻7 1 अपॉन दिस वैल्यू। इसको भी सॉल्व करने के बाद बच्चों ये आंसर आ जाएगा 2.424 इंटू 10⁻6 मीटर इनवर्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा? मीटर इनवर्स आ जाएगा। अब एक हमारा अगला रिलेशन है E इज इक्वल्स टू H इंटू न्यू, E इज इक्वल्स टू H इंटू न्यू। तो यहाँ से न्यू इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? E अपॉन H हो जाएगा। E की वैल्यू ये जो दिया गया था 4.8 इंटू 10⁻19 और H अपना प्लेन कॉन्स्टेंट है, उसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो न्यू आ जाएगा। ये न्यू की यूनिट क्या होती है? हर्ट्ज। हर्ट्ज होती है या फिर क्या होती है? साइकिल पर सेकेंड। तो आप चाहे साइकिल पर सेकेंड लिखो चाहे हर्ट्ज लिखो, दोनों ही सही है बच्चों। इसके बाद अगला क्वेश्चन अपना जो है वो है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ बोहर थर्ड ऑर्बिट इन लिथियम 2+ आयन। तो लिथियम 2+ आयन में रेडियस ऑफ थर्ड बोहर ऑर्बिट हमें फाइंड करना है। ठीक है, और रेडियस ऑफ nth बोहर ऑर्बिट का फार्मूला हमने आपको बता रखा है। क्या फार्मूला होता है? रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट r0 इंटू n²/z। ठीक है, r0 इंटू n²/z। r0 की वैल्यू होती है 0.529 एंगस्ट्रॉम। वैसे ये क्या है? रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम। n की वैल्यू 3 का स्क्वायर, z लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है। इसको सॉल्व करने से आंसर कितना आ जाएगा? 1.587 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कैलकुलेट द वेलोसिटी। वेलोसिटी किस में फाइंड करना है? इन सेंटीमीटर पर सेकेंड में फाइंड करना है। ऑफ एन इलेक्ट्रॉन प्लेस्ड इन द थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। आल्सो कैलकुलेट द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस पर सेकेंड दैट दिस इलेक्ट्रॉन मेक्स अराउंड द न्यूक्लियस। इसी ऑर्बिट में आपको रिवॉल्यूशन पर सेकेंड फाइंड करना है, मतलब या रेड फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है। ठीक है, तो हाइड्रोजन का जेड क्या है? 1 है। थर्ड ऑर्बिट में फाइंड करना है n = 3। वेलोसिटी ऑफ nth ऑर्बिट क्वेश्चन मार्क, फ्रीक्वेंसी ऑफ nth ऑर्बिट ये भी क्वेश्चन मार्क। अब हमने बच्चों जब आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर पढ़ाया था तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि वेलोसिटी ऑफ nth ऑर्बिट का फार्मूला होता है v0 इंटू z/n। एंड व्हाट इज v0? v0 इज़ द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम, और उसकी वैल्यू हमने आपको फाइंड करके बताया था 2.188 इंटू 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकेंड। v0 की वैल्यू है 2.188 इंटू 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, वेलोसिटी इन थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना हो जाएगा? 2.188 इंटू 10⁸ इंटू z/n। z की वैल्यू 1, नंबर ऑफ ऑर्बिट थर्ड। इसको सॉल्व करने में बच्चों आंसर आ गया
29 इंटू 10⁻7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है। फ्रीक्वेंसी ऑफ nth ऑर्बिट का भी फार्मूला बताया गया था, F0 इंटू जेड स्क्वायर अपान एन क्यूब। F0 क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम, और इसकी वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू होती है। मैंने आपको वैल्यू सॉल्व करके बताई हुई है, बार बार आपको सॉल्व नहीं करना है, नहीं क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा, सॉल्यूशन बड़ा हो जाएगा। तो इसकी हमें डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है। 0.657 इंटू 10⁻16 होती है, तो इसकी वैल्यू हम लोग यहाँ पे बच्चों पुट कर लेंगे। 0.657 इंटू 10⁻16 इंटू जेड स्क्वायर अपान एन क्यूब। ठीक है। जेड की वैल्यू 1 स्क्वायर, एन 3 है, 3 का क्यूब हो जाएगा, फिर ये 27 हो जाएगा, ये तो सारा। फिर इसको सॉल्व करने के बाद अपना आंसर आ जाएगा 2.4 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज, और हर्ट्ज को हम लोग क्या लिख सकते हैं? साइकिल पर सेकेंड लिख सकते हैं। ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन बच्चों है, कैलकुलेट द शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, कैलकुलेट द शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ऑफ लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज में बच्चों N1 तो 1 होता है, ये तो सबको पता है। लाइमन सीरीज में N1 क्या होता है? 1 होता है। अब आपको शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ फाइंड करना है। तो देखो यहाँ पे एक हमारा जनरल फार्मूला हो गया, जेड हाइड्रोजन के लिए Z1 1 अपान लेमडा आर जेड स्क्वायर 1 अपान N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर फॉर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन लाइमन सीरीज। इसको हम लोग बोलते हैं, दैट इज सीरीज लिमिट बोलते हैं। द एनर्जी डिफरेंस इन टू स्टेट्स शोइंग ट्रांजिशन शुड बी मैक्सिमम। लेमडा अगर मिनिमम है तो एनर्जी क्या होगी? मैक्सिमम होगी। और मैक्सिमम कब होगी? जब N2 क्या हो? हमारा इनफाइनाइट हो। तो N2 इनफाइनाइट हो और N1 1 हो, तो इसके बीच में एनर्जी का डिफरेंस क्या होगा? बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो N2 आपको इनफाइनाइट लेना है यहाँ से। तो 1 अपान लेमडा आर जेड स्क्वायर 1 अपान 1 स्क्वायर माइनस 1 अपान इनफाइनाइट स्क्वायर, ये अंदर पूरा बच्चों 1 हो गया। ठीक है। 1 अपान इनफाइनाइट का स्क्वायर 0, ये 1 हो गया। आर की वैल्यू ये 1 का स्क्वायर हो गया, जेड की वैल्यू 1 है, तो यहाँ से लेमडा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 अपान आर हो जाएगा। और आर की वैल्यू क्या है? 109,678 है। तो इसको सॉल्व करने पे आंसर आ जाएगा 9.11 इंटू 10⁻⁻6 सेंटीमीटर आ जाएगा, क्योंकि रेडबर्ग कांस्टेंट की यूनिट है सेंटीमीटर इनवर्स, तो ऊपर जाएगा तो सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है। अगला इसका जो पार्ट है, फॉर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन लाइमन सीरीज। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन लाइमन सीरीज, दैट इज फर्स्ट लाइन, द एनर्जी डिफरेंस इन टू स्टेट्स शोइंग ट्रांजिशन शुड बी मिनिमम। तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए क्या हो? एनर्जी मिनिमम होना चाहिए, और एनर्जी का डिफरेंस मिनिमम कहाँ पे होगा? फर्स्ट और सेकेंड ऑर्बिट के बीच में। तो N1 यहाँ पे 1 होगा और N2 क्या होगा? यहाँ पे 2 होगा। इसकी वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे। 1 अपान लेमडा इज इक्वल टू आर इंटू 1 स्क्वायर इन ब्रेकेट 1 अपान 1 स्क्वायर माइनस 1 अपान 2 स्क्वायर, 1 अपान 1 स्क्वायर माइनस 1 अपान 2 स्क्वायर। तो इसमें आंसर सॉल्व करने के बाद ब्रेकेट में कितना आ जाएगा? 3/4। तो 1 अपान लेमडा क्या आ गया? आर इंटू 3 अपान 4। लेमडा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 अपान 3 इंटू आर, 4 अपान 3 इंटू आर। आर की वैल्यू 109,678 सेंटीमीटर इनवर्स होती है। ये वैल्यू पुट कर दिया। ये वैल्यू पुट करने के बाद बच्चों इसको हमने सॉल्व कर लिया, और सॉल्व करने के बाद आंसर कितना आ गया? 1215.7 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। या इसको हम इंग्लिश में कन्वर्ट करना चाहें तो 10⁻⁸ सेंटीमीटर को हटा देंगे, इंग्लिश में आ जाएगा। ये बच्चों कुछ क्वेश्चन हो गए बोहर्स फार्मूलों से रिलेटेड, डी ब्रॉगली वेवलेंथ से रिलेटेड और आइंस्टीन से रिलेटेड। इसके बाद इसके आगे के बच्चों न्यूमेरिकल्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू, वेरी गुड।